नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। I'm Suresh Kumar Devangan. Today I'm here to give you a complete detail on how to prepare for interview. Friends, it's a master guide where I'm going to tell you quite in quite detail how to prepare your introduction, to give it before the panel. At the same time, I'm going to tell you what can be the questions. Friends, it's a complete 23 pages PDF which also will be given to you for your study purpose. You can find it in the description box. A link will be given to you. You can easily download it and you can prepare. Friends, believe me and mark my words. Panel will not have any other question than what I am going to present you. I have kept all the themes, all the schemes of Kendriya Vidyalaya. Let me show you in brief what we are going to do. First, we will prepare the introduction. After preparing the introduction, we will go ahead with all the schemes that is prevailing, like PM3, what is PM3, Nipun Bharat, everything from the perspective of education, from the management part, and from the admin and finance part. Everything, every terminology has been drafted in such a manner that you need not speak much. In brief, you will be able to tell with facts and figures everything if you are there in the video till the end. Friends, everything I am bringing it to you, and I expect after watching it, I must be getting your comment in the comment section. If you watch it and find yourself being benefited, definitely you should take 2 minutes time to write your feedback. How did you like it? Or what should have been added? Or what should have been deleted? I'll be waiting for it. So let us begin with the introduction part. Friends, I feel first of all you must master your introduction, and the introduction must not last more than 1 or 2 minutes. But all you can include into that, here I have given it a heading, guideline for success. This introduction is strategically designed to create an immediate, lasting impact on the selection panel. Read the 10 essential points carefully and adopt them to your unique achievement and personality. This is a model one, and you can change it according to your own introduction. First, ideal introduction, that is a sample that should last for 1 to 2 minutes. I have already talked about it. I thought to talk you afresh because it is an extension of the previous one. You can start with respectful greetings to the esteemed panel members. I am, and then you can mention your name very precisely. Friends, be very precise in telling your name. Don't hesitate, or you should not fumble. I am, for example, I am Suresh Kumar Devangan. When I say the word Devangan, most of it mispronounced Devgan, Devanand. So I must be very clear in pronouncing it. Some of you, those who know their name is a typical one, different one, that people may mispronounce it. So you should give clear idea. Clearly you should pronounce your name. I am currently working as PGT English at Kendriya Vidyalaya NHDC Narmadanagar. That you should say. And straight away you come down, I have 20 years of teaching experience. Don't say I have been working from 1990 since 1994. So now don't give the task to the panel member 94 से अच्छा मतलब 6 साल इधर हो गए 26 साल इधर 32 साल. Why will they calculate? Give a very clear idea. I have been working, I have been teaching, I have been in this noble profession for 24 years, for 13 years, for 9 years, for 7 years, like this. And if you are working as vice principal, you are working as principal, then must mention year of administrative experience. This is the first 3 lines of your introduction. You must highlight your qualification.
Now you should start with the biggest one, MSc, MEd, MBA, PhD, likewise. Now the one who is MSc should not say BSc. It is not needed. If you are NET and JRF qualified, that also you can mention into it. And then you must give a philosophy. You must have a philosophy of yourself. For example, I have written, every child can learn. They only need the right opportunity and guidance. Now, then they will be asking question into that. From that, they may be framing a questions. Now, during my career, I have, and now you have to mention 2 to 3 specific achievement. Now, what you can include into the specific achievement, such as improving board result by 20% when I joined this and that school. The board result was this much percent, and I improved it up to this percent. You have implemented something, National Education Policy 2020, based on the curriculum, or organizing teaching training program, or you have got some regional award or national award or teacher excellent award, whatever it is. Do mention. So now let us see. You in the beginning you mentioned your name, qualification, place where you are working, your experience, and then your philosophy, and then your achievement. So these should be the steps, friends. Don't mismatch. किसी को आगे किसी को पीछे मत कीजिए, स्पष्ट रूप से आगे बढ़िए. During my career, I have this achievement, specific achievement that we have mentioned, and then you have come to the organizing teaching program, winning award, anything if you have done, mention that. Then, I am a reflective practitioner. This is the line that I have given. You can change the line. Reflective practitioner. What do you mean by reflective practitioner? Someone who learns from mistakes, empowers the team, because we are going to appear for the interview of a principal, vice principal. So you must say, I am a reflective practitioner. Someone who learns from mistakes, empowers the team, decentralization, and believe in bringing institutional change. I believe in bringing institutional change. And then at last, you will assure them why you are good at, what you are good at, how you can be a better candidate. Sometimes you are asked, sir, tell me, why shall we give you an opportunity to work as a principal? So this is what, here it is. If selected for this position, my priority will be student-centered, always. Student-centered learning, professional development of teachers, and strengthening school community partnership. देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने तीनों बातें कर ली. पहली बात चाइल्ड की हमने कर ली कि आई विल बी चाइल्ड सेंटर्ड, आई विल एम्फेसाइज ऑन द माय प्रायोरिटी विल बी चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, आपने कह दिया. प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, आपने टीचर्स की भी बात कह दी. और अंत में आपने कह दिया कि इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ, पूरी कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करना मेरा उद्देश्य होगा. आपने सब कुछ तो कह दिया, यही तो वो सुनना चाहते हैं. एंड आई एम फुली कमिटेड टू कैरिंग फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ KVS NVS. अब दोस्तों मैंने यहाँ पे तीनों चीज लिखी, तो ऐसा नहीं कि आप तीनों की तीनों बोल दे, खैर इतने समझदार आप भी हैं. If you are appearing for EMRS, you will say, I am fully committed to carrying forward the legacy of Eklavya Model Residential School and providing quality education to every child. I am fully committed to carrying forward the legacy of Navodaya Vidyalaya and providing quality education to every child. Likewise. So you will be going ahead in that manner. I hope it is clear to you, friends. Very clear? Pretty good. And then at last उनको पता भी चलना चाहिए कि हाँ भाई अब आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया. थैंक यू सर, एंड आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. ये आपने उनसे कह दिया हाँ भाई अब इनका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है, अब हमको आगे बढ़ना है. दे विल हैव अ फीलिंग लाइक दिस. नाउ फ्रेंड्स, 10 एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस टू एक्सेल. दोस्तों इसका हिंदी वर्जन भी है इसके नीचे के पेज में. शुरू के 2 पेज में इंग्लिश वर्जन है, शुरू के नेक्स्ट 2 पेज में हिंदी वर्जन है. सो जो दोस्त अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में कंप्लीट करना चाहते हैं वो नीचे हिंदी वाले पार्ट को पढ़ लेंगे. अभी आएंगे हम उस पर, हालांकि उस पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, वो केवल हम आपको दिखा देंगे. 10 essential instructions to excel. The very first thing, clarity and confidence. Confidence level should be very high undoubtedly. अब आप इस तरीके से ऐसे बैठे हैं, मेरा नाम सुरे, obviously that should not be there. So the clarity as well as the confidence. State your name and current position very clearly without hesitation.
The panel member will with a confidence look directly at panel members with confidence and warmth. बड़े ही कॉन्फिडेंस से आप उनकी ओर देखिए और उनको बात कहिए। जैसे कि मैंने अपने नाम के बारे में बताया था आपको, मेंशन योर क्वांटिफाई योर एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्वांटिफाई करना है। मेंशन टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन स्पेसिफिक नंबर, एग्जांपल 15 years ऑफ टीचिंग, 5 years ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डोंट पुट देम इनटू कैलकुलेशन। ये कहते हुए कि मैं 2013 से केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत हूँ। डोंट से दैट माय फ्रेंड, मोस्ट ऑफ द टीचर्स स्पीक लाइक दिस। तो क्या वो बैठ के गिनेंगे? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। अच्छा, 2013 से मतलब 7 साल उधर, 6 साल इधर, 7 6 13 साल हो गए भाई इनको। या 2013 से तो 13 दूनी 26, 13 साल हो गए। वाई यू आर पुटिंग देम इनटू एफर्ट? डोंट पुट देम, स्पेसिफिकली क्वांटिफाई दैट। टॉप हाईलाइट योर अचीवमेंट। अगर कोई आपका अचीवमेंट है, छोटी छोटी चीजों को छोड़ दीजिए, वो सबके पास होते हैं। यदि कोई बड़ा अचीवमेंट है, इंक्लूड योर मोस्ट सिग्निफिकेंट एकेडमिक अचीवमेंट, board results improvement, innovation, if you have any projects, any award or any recognition at regional level, school level, better if it is regional level or national level, or some state government or other organizations have recognized you and your work, you must mention that. Share your educational philosophy. टीचर्स डायरी के भी पहले पन्ने पे हम अपना एजुकेशनल फिलोसफी लिखते हैं। व्हाट इज योर टीचिंग फिलोसफी? वो क्यों लिखवाया जाता है? ताकि आपको वो रिमाइंड करता रहे कि भाई आपकी ये फिलोसफी है और आपको इसी फिलोसफी पे आगे बढ़ना है। तो रिमेंबर इट फ्रेंड टू गो अहेड विथ दैट। Add a memorable phrase that define your approach. Example, every child is special or learning is joy. This is my philosophy that you can copy or you can change. Define your leadership style. हाँ, आप लीडर बनने जा रहे हैं, आप प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं, तो आपको लीडरशिप क्वालिटी तो उनको दिखानी पड़ेगी। Hint at whether you practice इंस्ट्रक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल और डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप। लीडरशिप 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, नहीं जानते तो सुन लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप और डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप। अलाइन विथ योर एक्चुअल अप्रोच। जो आपका एक्चुअल अप्रोच है आप उसी अप्रोच पे रहिए, वो उनको बताइए। यूज टर्मोलॉजी, की टर्मोलॉजी। नेचुरली इनकॉर्पोरेट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, FLN फाउंडेशनल एंड लिटरेसी न्यूमरेसी, इसको आप इनकॉर्पोरेट कीजिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट कीजिए। 21st सेंचुरी स्किल, जिसकी बातें मैं अभी करूंगा नीचे। सो यू आर अपडेटेड। इनके बारे में जब आप बात करें तो इससे ये पता चलता है कि यू आर अपडेटेड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बैलेंस, कॉन्फिडेंस एंड ह्यूमिलिटी। इनमें बैलेंस दिखना चाहिए, एरोगेंस नहीं दिखना चाहिए। प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस। देखो, कॉन्फिडेंस शो करना और एरोगेंस शो करना दो अलग चीजें होती है। डोंट बी एरोगेंट टू द पीपल दोज हु आर देयर टू सेलेक्ट यू। सो विलिंगनेस टू लर्न। अगर कुछ उत्तर नहीं आता है तो पोलाइटली हम रिजेक्ट करते हैं, एंड वी शो दैट वी आर एबल एंड वी आर ईगर टू लर्न। अवॉइड डिफेंसिव लैंग्वेज। बहुत ज्यादा, सर मुझे क्षमा कीजिएगा, ये मुझे नहीं आता, निश्चित रूप से मैं इसको देखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, आई विल गेट। नो, डोंट बी वेरी वेरी मच डिफेंसिव। बी डिफेंसिव बट डोंट बी वेरी मच डिफेंसिव। मास्टर योर डिलीवरी। जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं, पे अटेंशन टू वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट एंड पोस्चर। आपका पोस्चर बहुत मायने रखता है कि आप अधिकारी के सामने कैसे बैठते हैं और आप अपने सबॉर्डिनेट के सामने कैसे बैठते हैं। सिट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे बैठना है आपको। अवॉइड फिजगेटिंग। फिजगेटिंग, हाथ पैर को हिलाना, मूव करना, पैरों को मूव करना, हाथ पैर का बहुत ज्यादा मूवमेंट करना, इस तरीके से ऐसे बैठना, दिस इज ऑल फिजगेटिंग। अवॉइड इट। स्पीक क्लियरली एट मेजर्ड पेस। कौन सी चीज को आपको कितना एम्फेटिक करना है, ये आपको ध्यान देने की बात है। नाउ रेस्पेक्ट द टाइम लिमिट। ऐसा नहीं कि आप बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। यू मस्ट रेस्पेक्ट द टाइम लिमिट एज वेल। प्रैक्टिस अंटिल यू कैन डिलीवर द इंट्रोडक्शन इन एग्जैक्टली 1 or 2 minutes, मैक्सिमम 2। यूज अ टाइमर ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशन। क्योंकि आपके पास बहुत समय है, आप प्रैक्टिस इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। And end your introduction with professionalism. And how to end your introduction with professionalism? Yes, friends, listen. Close with a sincere thank you and readiness for question.
थैंक यू कहते हुए बंद करना है आपको, एंड यू हैव टू शो योर विलिंगनेस, रेडीनेस, दैट यू आर रेडी फॉर फर्दर क्वेश्चन. I would be delighted to answer your questions, sir. Looking and having eye contact to all the members of the panel. I hope, friends, it is all clear to you. Now, here, exclusive tips by Devangan sir here. Elevate your introduction. How can you elevate 8 local contact? यदि कहीं पे हो रहा है, पटना में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, सर, आई एम अ लोकल गाय ऑफ पटना, इस तरीके की बातें आप जोड़ सकते हैं. इफ यू बिलोंग टू सेम डिस्ट्रिक्ट स्टेट, मेंशन इट ऑथेंटिकली. दिस बिल्ड्स रिलेटेबिलिटी. शोकेस स्पेशल क्वालिफिकेशन, मेंशन PhD, नेट, UGC, नेट, national award or published book or research paper or significant certificates if you have. Do mention it. If you don't have, don't talk about that. Reference your SDP, school development plan. You can mention that. Name a specific school development plan or campaign you led. For example, I launched the digital literacy for all initiative. या आपने और भी कुछ लॉन्च किया है, जो कुछ भी आपने नया किया है, talk about that very clearly. Now describe a major initiative that you have taken in school. अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचिए, बैठिए, आपने अपने टीचिंग करियर में कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो आपने लिया है, जिसे अप्रिशिएट किया गया है, that is widely known, that has benefited the parent, the community, the teacher, the students, and the principal, and the institution ultimately. So now, in 1 or 2 sentences, describe one transformative initiative from your previous role. I fully upgraded the site. This is an example. Upgraded laboratory and trained staff in modern pedagogy. ये बात आप मेंशन कर सकते हैं. Now, important caution, friend. This introduction is only a sample framework. Adopt it completely to your actual achievement, real experience, and authentic personality. Practice 5 to 7 times in front of a mirror or with a trusted colleague. आप अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, आप खुद ही सुनिए, खुद ही देखिए, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को देखिए, अपने पोस्चर्स को देखिए, अपने अपीयरेंस को देखिए, और फिर कॉन्फिडेंस रहिए कि यस, कॉन्फिडेंस रखिए कि यस, आई कैन प्रिपेयर इट वेल, आई कैन डिलीवर इट वेल. दोस्तों, यही चीज हिंदी में दिया हुआ है, जिसकी हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे. हिंदी वाले साथी इसे देख लेंगे. वही का वही चीज है, आपको हिंदी में, चूंकि आप कंफर्टेबल हैं, इसलिए आपको दिया गया है. ये बाइलिंगुअल तरीके से दिया गया है. दोस्तों, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रारंभ होती है. ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन, जो आपके हाथ में था. मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इससे आपके बाहर जा सकता है. आपका इंटरव्यू, केंद्रीय विद्यालय संगठन छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रमुख योजनाएं और पहल जो लेके आया है, उसका पूरा का पूरा विवरण नीचे दिया गया है. हम सबसे पहले बात करेंगे एकेडमिक स्कीम्स की. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों. आपको 20-25 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज बीइंग डन फॉर यू. चलिए शुरू करते हैं दोस्तों. बहुत संक्षेप में मैं केवल पढ़ते जाऊंगा. अच्छा, केवल PDF लेके आप पढ़ लेंगे ऐसा सोच रहे हैं तो दोस्तों गलत सोच रहे हैं. मैं बार बार कहता हूं कि यदि किताबों का होना बुद्धिमत्ता की निशानी होती, तो जो लोग किताबों से घिरे रहते हैं वो दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं. बहुत ज्यादा किताबों का होना भी हानिकारक हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा. मेरे साथ बने रहिए, सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मैं केवल पढ़ नहीं रहा हूं. आई एम गिविंग यू लाइव एग्जाम्पल्स. If this situation happens, you can say that, which is not written here. I am not simply reading it, that anyone can do. Then what is different? You will find it. यदि आपसे पूछा जाता है, या आप कहते हैं कि मैं PMC योजना का इंचार्ज हूँ, जैसे कि हमने मॉक इंटरव्यू में अभी देखा, कई साथियों से हमने पूछा, उन्होंने कहा भी कि मैं PMC का इंचार्ज हूँ. हाँ बताइए भाई, ऐसा फलाना क्या? नहीं सर, इसको थोड़ा सा देख नहीं पाया था सर, इसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं. तो दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको नहीं पढ़ना है. आपको केवल और केवल इतना बोलना, जैसे ही PMC के बारे में कुछ पूछा गया, भले आप उसको डिटेल से नहीं जानते, इतना जानना आपके लिए जरूरी है. KVS के 800 से अधिक विद्यालयों को PM3 स्कूल के रूप में चुना गया. अब मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या ये आंकड़ा आपको पता था? जो PM3 से नहीं जुड़े हुए हैं, जो PM3 डिपार्टमेंट के मेंबर नहीं है, एसोसिएट नहीं है और इंचार्ज नहीं है, क्या उनको ये बात पता थी? नहीं पता थी, अब पता चल गई.
तो ये बात आपको इम्फेटिकली कहना है। केवीएस के 800 से अधिक विद्यालय को पीएम3 स्कूल के रूप में चुना गया है। यह योजना 2022-23 से 2026-27 तक लागू है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए, जिसका उद्देश्य आधुनिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल लाइब्रेरी और 21वीं सदी के कौशल के साथ भविष्य के लिए स्कूल भविष्य के लिए तैयार स्कूल बनाना। दोस्तों आप इतना बोल दीजिए, उसके बाद आपको पीएम3 में वो कुछ भी नहीं पूछेंगे, हो सकता है कुछ पूछे, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो सबको पता होना चाहिए। बाल वाटिका, जिनके स्कूल में बाल वाटिका नहीं है उनको नहीं पता है, और वो बड़ी आसानी से कह देते सर हमारे स्कूल में बाल वाटिका नहीं है। तो भाई आप जिस स्कूल में प्रिंसिपल बनेंगे, क्या वो स्पेसिफिकली देख के आपको बनाएंगे कि यहाँ पे बाल वाटिका है कि नहीं है? नहीं, आपको सारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। एनईपी 2020 के तहत छोटे बच्चों के लिए फाउंडेशनल स्तर पर बाल वाटिका कक्षाएं शुरू की गई है, जो 3+ से चालू होती है। 3+ बाल वाटिका 1, 4+ बाल वाटिका 2, 5+ बाल वाटिका 3 और 6+ में फिर वो क्लास 1 में एडमिट हो जाता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। विद्या प्रवेश क्या है? व्हाट इज विद्या प्रवेश? आपको यदि पूछा जाता है, कक्षा 1 के छात्रों के लिए एक खेल आधारित प्ले मॉड्यूल है, जिसे जादुई पिटारा भी कह सकते हैं आप, जो स्कूल के वातावरण में ढलने में मदद करता है। तो ये विद्या प्रवेश है। अच्छा, कौशल भारत क्या है? व्हाट इज स्किल इंडिया? तो स्किल हब इनिशिएटिव के तहत लगभग 300 केंद्रीय, ध्यान रखें, पीएम3 800 केंद्रीय विद्यालयों के साथ, और कौशल इंडिया स्किल कौशल भारत स्किल इंडिया स्किल हब इनिशिएटिव के तहत लगभग 300 केंद्रीय विद्यालयों को वोकेशनल एजुकेशनल हब के रूप में विकसित किया गया है, जहां आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना कह दीजिए, हो गया, वो समझ जाएंगे। ही नोज एवरीथिंग, सी नोज एवरीथिंग। अब बात करते हैं हम डिजिटल और तकनीकी पहल की, आईसीटी इनिशिएटिव की। ई क्लासरूम सबके पास है, अटल टिंकरिंग लैब सबके पास है, आपको पता है। लगभग सभी केवीएस में ब्रॉडबैंड और हजारों ई क्लासरूम उपलब्ध है। कई स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी लैब के जरिए शिक्षण को आधुनिक बनाया गया है। इतना बोलना है आपको। अटल टिंकरिंग लैब की बात पूछते हैं, यदि वो डीप जाते हैं तो आप डीप उत्तर दीजिए, लेकिन सरफेस लेवल पे यदि आपसे पूछा जा रहा है तो कम से कम आप इतना कह सकते हैं, छात्रों में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए रोबोटिक्स और एआई जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए ये लैब्स बनाई गई है। खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम की हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम की, तो राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं क्या है? केवीएस क्लस्टर रीजनल और नेशनल स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, जिसमें विजेता छात्र स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI में हिस्सा लेते हैं। ये बात आप बता दीजिए दोस्तों। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? EBSB। इस कार्यक्रम के तहत छात्र विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक, भाषा और कला का आदान प्रदान करते हैं, ताकि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले। छात्र अधिकारिता कार्यक्रम, स्टूडेंट इम्पावर्ड, ये ऐसा प्रश्न है कि हो सकता है आप गलत उत्तर देते, जबकि आप जानते हैं ये क्या है, नाम से नहीं जानते हैं। छात्रों में नेतृत्व और जिम्मेदारी विकसित करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल का गठन किया जाता है, उसे ही हम छात्र अधिकारिता कार्यक्रम या स्टूडेंट इम्पावरमेंट प्रोग्राम कहते हैं। अब आप कार्य को तो जानते हैं, लेकिन उसको नाम से नहीं जानते हैं, एंड दैट इज द पर्पस देवांगन सर इज हियर विद ऑल दीज डिटेल। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट जरूर आने चाहिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज तक मैंने आपको कभी नहीं कहा है, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। वो क्यों करें? आप अपने फायदे के लिए, क्योंकि कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। पुट ऑन द नोटिफिकेशन बटन, प्रेस द बेल आइकन, सो दैट यू गेट द अपडेट। जरूरी नहीं है कि हर वीडियो का अपडेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिले, व्हाट्सएप ग्रुप कभी भी बंद किया जा सकता है, क्योंकि अब उद्देश्य उसका पूरा हो चुका है। छात्र कल्याण और शुल्क रियायत की हम बात करते हैं, स्टूडेंट वेलफेयर की बात करते हैं, तो शुल्क में छूट किनको मिलती है? कक्षा 12वीं तक की लड़कियों और सभी SC/ST के छात्रों को ट्यूशन फीस माफ होती है। ये बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। पीएम केयर्स क्या है? कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को, ऑर्फन चिल्ड्रन, प्रवेश प्रक्रिया में प्राथमिकता दी गई और फीस से पूरी की पूरी छूट उन्हें दी जाती है। CWSN क्या है? उनको सुविधाएं क्या मिलती है? तो दीज आर, ये चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, उसके लिए रैंप, विशेष शौचालय
और विशेष शिक्षकों दैट इज स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था की गई है। केवीएस द्वारा छात्रों के विकास, समावेशी शिक्षा और डिजिटल नवाचार के लिए कई विस्तृत योजनाएं संचालित की जा रही है। दोस्तों, इसकी पूरी चर्चा हमने अपने एक्सक्लूसिव वीडियोस में, जिसमें हमने इंक्लूसिव एजुकेशन को पढ़ाया है, आपको पूर्णतः मिल जाएगा। परंतु अब इंटरव्यू के लिए आप तैयार कर रहे हैं, इतना समय नहीं है, इसलिए इनको फिर से विशेष रूप से आप सभी के लिए लाया गया है। निपुण भारत और बुनियादी शिक्षा की अगर हम बात करें, फाउंडेशन इन लिटरेसी की, तो निपुण लक्ष्य क्या है? अब यहाँ पे दोस्त क्या करते हैं, निपुण का फुल फॉर्म बताने लग जाते हैं। फुल फॉर्म बता देना पर्याप्त नहीं है दोस्तों, वो तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रेड 3 तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संज्ञानात्मक ज्ञान, कॉग्निटिव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सुनिश्चित करना है, जिसे ही हम FLN कहते हैं। कहाँ तक के बच्चों को? ग्रेड 3। तो मैंने बताया था 6+ क्लास 1 है, 7+ क्लास 2 है, 8+, अगर आयु पूछे तो 8 वर्ष तक के बच्चों, 8 वर्ष प्लस के बच्चों, और यदि क्लास पूछे तो कक्षा 3 तक के बच्चों। ये आपको ध्यान होना चाहिए। जादुई पिटारा क्या है? तो खेल आधारित शिक्षण सामग्री जैसे खिलौने, पहेली, कार्ड, इनका उपयोग कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए किया जाता है। एक प्रश्न आया था आपको, जादुई पिटारे में क्या सम्मिलित नहीं है? अगर आपको इनका डिटेल पढ़ना है तो दोस्तों कम से कम आपको टॉपिक मिल रहा है कि कौन कौन से टॉपिक है जिनको मुझे डिटेल में पढ़ना है, क्या क्या पूछा जा सकता है। एक बार जब आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं, जिनका आपको जानकारी होना चाहिए। हम छात्र कल्याण और स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्टूडेंट वेलफेयर और हेल्थ की जब बात करते हैं, तो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन, कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को शिक्षा 1 से 12 तक पूरी फीस, ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड और बीपीएल में छूट दी जाती है। जबकि आपको पता होगा जो बीपीएल के तहत जिनको छूट दी जाती है उनको भी 300 रुपए जमा करना रहता है, उनको केवल बीबीएन की छूट रहती है, कंप्यूटर फीस उनको जमा करना रहता है। तो कौन से बच्चों को किस चीज की छूट होती है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। स्वास्थ्य जांच की उनकी सेवाएं रहती, हेल्थ चेकअप, साल में 2 बार सभी छात्रों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं और उनका फिजिकल हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। डिजिटल और नवाचार कौशल की बात करते हैं, डिजिटल इनोवेटिव एंड स्किल। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या होता है जरा देख लेते हैं। ई ग्रंथालय 4.0। व्हाट इज ई ग्रंथालय? यदि आपसे यह पूछ लिया जाता है, क्या बोलेंगे आप? स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है, जिससे छात्र ऑनलाइन किताबें खोज सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ये आपका ई ग्रंथालय है। प्रेरणा कार्यक्रम क्या है? गुजरात में चलाया जा रहा है, आपको पता होगा, प्रेरणा प्रोग्राम। इसके तहत छात्रों को नेतृत्व कौशल और मानवीय मूल्यों को विकसित करने के लिए आवासीय कार्यक्रम के जरिए प्रेरित किया जाता है। समय समय पर इसकी जानकारी आपके विद्यालय से कलेक्ट की जाती है, आपको इसके विषय में ज्ञात होगा। यदि नहीं है तो आप ज्ञात कर लीजिए दोस्तों। अटल टिंकरिंग लैब हम बात कर चुके हैं, छात्रों को रोबोटिक्स, एआई और सेंसर आधारित नवाचारों में व्यवहारिक अनुभव देने के लिए इन लैब्स का संचालन किया जाता है। खेल और रचनात्मक गतिविधियों की बात करते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाता है, आप पीजीटी हैं, पीजीटी के रूप में काम कर रहे हैं, बाल दिवस या मिनी स्पोर्ट्स मीट क्या है? आप नहीं जानते। बाल दिवस में बच्चों के लिए कार्यक्रम किया जाता है, टीचर प्रार्थना करते हैं उनके लिए, असेंबली में गीत गाते हैं और ऐसा कर। डोंट आंसर इन सच अ हैप्पीजार्डियस मैनर फ्रेंड्स। हर साल 14 नवंबर को प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए एक विशेष खेल उत्सव आयोजित किया जाता है, जिसे मिनी स्पोर्ट्स कहा जाता है। नाउ व्हाट इज एफ फॉर एस? एफ फॉर एस हो सकता है आपको ना पता हो, मैं बता दूं, फुटबॉल फॉर स्कूल। फीफा के सहयोग से शुरू की गई इस योजना के तहत स्कूलों में लाखों फुटबॉल वितरित किए गए हैं और फुटबॉल को प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ही बढ़ावा दिया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना। राष्ट्रीय एकता पर्व क्या है? छात्र विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक और कला का प्रदर्शन कला उत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से करते। विशेष प्रवेश लाभ, स्पेशल एडमिशन बेनिफिट क्या है? 8E कोटा के शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 में 25% सीटें वंचित और कमजोर वर्गों SC ST EWS BPL OBC NCL के लिए आरक्षित है, जिनका चयन
लॉटरी सिस्टम से होता है। नवाचार और विज्ञान योजनाएं क्या है? इनोवेटिव इन साइंस, तो इंस्पायर अवार्ड मानक, ये आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से संचालित इस योजना का उद्देश्य 10 से 15 वर्ष के छात्रों में रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग विकसित करना है। छात्र अपने मौलिक विचारों को पोर्टल पर जमा करते हैं और चयनित प्रोजेक्ट को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जो 5,000 रुपए तक की है। इंस्पायर अवार्ड आपको पता होगा। स्टेम बहुत ज्यादा चल रहा है। स्टेम शिक्षा के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की गई है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। केवीएस ने हाल ही में आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौता किया है ताकि छात्रों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम STEM के प्रति रुचि और कौशल को बढ़ाया जा सके। दोस्तों मैं समझता हूँ सभी चीजों का यहाँ पर समावेश किया जा रहा है। आप वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए, आप सुन रहे हैं, निश्चित रूप से आपको बेनिफिट हो रहा है और अंत में, वीडियो के अंत में पीडीएफ के साथ फिर आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। रीडल चैलेंज, ये सारी वो चीजें हैं जो केंद्रीय विद्यालयों में संचालित की जा रही है। मुंबई, अब जैसे देखो स्टेम कहाँ से आया है? आईआईटी दिल्ली से आया है। वैसे रीडल कहाँ से आया है? मुंबई रीजन जैसे कुछ क्षेत्रों में छात्रों की तार्किक क्षमता और अवधारणा समझ को मजबूत करने के लिए यह एक प्रमुख गतिविधि के रूप में चलाई जा रही है। शैक्षिक उत्कृष्टता और सहायता की हम बात करते हैं, एकेडमिक एक्सीलेंस की बात करते हैं। उसके अंतर्गत शैक्षिक हानि क्षतिपूर्ति कार्यक्रम, नाउ CALP। अब हो सकता है आपको ना जानकारी हो दोस्तों। CALP शैक्षिक हानि क्षतिपूर्ति कार्यक्रम, जो छात्र लंबी छुट्टियों या किसी अन्य कारण से पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, उनके लिए शरद ऋतु या शीतकालीन अवकाश के दौरान अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की जाती है। बोर्ड परीक्षा सहायता, एकेडमिक सपोर्ट मटेरियल, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए विशेष स्टूडेंट सपोर्ट मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है, जिसे नियमित शिक्षण और उत्तरात्मक रेमेडियल कक्षाओं को एकीकृत किया जाता है। इसे किनके द्वारा तैयार किया जाता है? ZIET, जो हमारे जोनल इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा इसे तैयार किया जाता है। एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा तैयार किया जाता है। पुनः परीक्षा, रीटेस्ट की सुविधा है। केवीएस राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने वाले छात्रों के लिए उनकी परीक्षा छूटने की स्थिति में पुनः परीक्षा की व्यवस्था करता है ताकि उनकी शैक्षिक प्रगति प्रभावित ना हो। ग्रीन इनिशिएटिव की बात करते हैं। इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इस कुछ भी का हल हमने यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से लाने का प्रयास किया है। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम, GSP, व्हाट इज ग्रीन स्कूल प्रोग्राम? इट्स अ काइंड ऑफ ऑडिट। 33 केंद्रीय विद्यालयों को भारत के सबसे हरित स्कूलों में, ग्रीन स्कूल्स में स्थान दिया गया। इसके तहत वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा का उपयोग, परिसर में सघन हरित आवरण, ग्रीन कवर सुनिश्चित किया जाता है। 4 Rs, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रोवर। स्कूल में कचरे के पृथक्करण और कला के माध्यम से स्थायी सोच को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट सामग्रियों से कलाकृतियां बनाने जैसे प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं। दैट इज नोन एज 4 Rs। विशेष अभियान 4.0 स्वच्छता का, यह एक स्वच्छता अभियान है जिसमें छात्र और शिक्षक मिलकर स्कूल परिसर और स्थानीय सार्वजनिक स्थानों की सफाई करते हैं। छात्र सुरक्षा और सशक्तिकरण की बातों में किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम AEP, अडोलसेंस एजुकेशनल प्रोग्राम, PMC योजना के तहत किशोरियों के स्वास्थ्य और किशोर अवस्था से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ सत्र आयोजित किए जाते हैं। जेंडर सेंसिटाइजेशन, छात्रों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और रूढ़ियों को खत्म करने के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किए जाते हैं। विस्तार और बुनियादी ढांचा योजना, एक्सपांशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। 10 वर्षीय मेगा शिक्षा योजना क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए 10 वर्षीय मेगा शिक्षा योजना क्या है, तो सरकार ने अगले 10 वर्ष के भीतर 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। यह योजना विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां अभी तक कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं। भवन को सीखने में सहायता बनाना, दैट इज BALA। इसकी लिखावट देख लीजिए दोस्तों। B is a basic word, main word, A is assistive word, L and A they are the main word। इसका फुल फॉर्म क्या है आप देखिए जरा।
स्कूल की इमारतों, दीवारों, फर्श, खंभों को सीखने के संसाधन के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बाला जिसे हम कहते हैं। कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण, हमने एक मित्र से पूछा था मॉक इंटरव्यू के दौरान, बाला, जिसे वो बताने में असमर्थ थे। ऐसी स्थिति आपकी ना हो, इस चीज को आपको इंश्योर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ इज क्वाइट इंफॉर्मेटिव एंड विल बी यूजफुल फॉर योर इंटरव्यू सेशन। स्किल हब पहल, व्हाट इज स्किल हब इनिशिएटिव? लगभग 350 केवीएस को स्किल हब के रूप में चुना गया है। यहाँ आईटीज, आईटीईएस, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकते हैं। ये सारी चीजें ऐसी जो जिनका विशेष हमें ज्ञान नहीं है। नाउ VETHAL योजना, विथल योजना, विशेष रूप से टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस शिक्षकों और छात्रों के लिए प्रयोगात्मक सीखने पर केंद्रित है। कौशल पाठ्यक्रम की बात करते हैं, कक्षा 8 से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को व्यावसायिक रूप से विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर और छात्र विनिमय, इंटरनेशनल एंड साइंस प्रोग्राम, एक्सचेंज प्रोग्राम, साकुरा साइंस प्रोग्राम, जापान भेजा जाता है जिस प्रोग्राम के तहत। साकुरा साइंस प्रोग्राम, that is SSP is also it is known as, मेधावी छात्रों को विज्ञान और संस्कृति सीखने के लिए जापान भेजा जाता है। जिज्ञासा, जिज्ञासा कार्यक्रम क्या है? CSIR प्रयोगशाला के साझेदारी के तहत छात्रों को वास्तविक वैज्ञानिक वातावरण देखने के लिए प्रयोगशालाओं का भ्रमण कराया जाता है। प्रयास, ये प्रयास योजना क्या है? छात्र स्थानीय स्तर पर वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए शोध परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं। छात्र कल्याण और समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिविटी एंड वेलफेयर, विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की गई। सभी केवीएस में विशेष शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं जो अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे चल, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड की शिक्षा और मूल्यांकन पर काम करते हैं। पुनः परीक्षा इसके बाद में कर चुका हूँ। शिक्षक और नेतृत्व विकास, टीचर एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, प्रशिक्षण और विकास सप्ताह भी आयोजित किए जाते हैं। शिक्षकों को NEP 2020 की नई शिक्षण पद्धति जैसे खिलौना आधारित शिक्षा, टॉय बेस्ड एजुकेशन लर्निंग से लैस किया जाता है। समृद्धि विकास प्रतियोगिता, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षकों के बीच कला और तकनीकी एकीकृत पाठ योजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता था, केवीएस की टर्म्स है, टेक्नोलॉजी है, वर्ड्स है, प्लान्स है, स्कीम्स है। और अब हम बात करते हैं न्यू टर्म्स इन एजुकेशन। एजुकेशन में कंसेप्ट, पॉलिसीज और इनिशिएटिव NEP 2020 के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें अभी प्रिवेलिंग है, हम उनकी चर्चा करते हैं। दोस्तों यह चर्चा मैं विस्तार से आपसे कर रहा हूँ। आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम इन्हें अच्छे से एडॉप्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बहुत जल्दी से ले लूंगा, बहुत कम समय में ये हम खत्म कर देंगे। स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी टर्म्स, NEP की बात करें तो 5+3+3+4 स्ट्रक्चर से, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर्स को हम फॉलो करते हैं। द न्यू पेडागोजिकल स्ट्रक्चर्स, दैट इज फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। ये 4 जो है 9 to 12 हो गया, ये 6 7 8 हो गया, ये 3rd 4th 5th हो गया, और ये 5 साल की उसकी उम्र होती है ना। फाउंडेशनल स्टेज क्या है? एज की बात करते हैं तो 3 to 8 ईयर्स होगा, और 3 ईयर्स प्री प्राइमरी स्कूल में आता है, ग्रेड 1 और 2, ये सारी चीजें मिलाकर उसका 5 साल हो जाता है। प्रिपरेटरी स्टेज की हम बात करते हैं तो ग्रेड की बात करें तो कक्षा तीसरी से 5वीं तक को प्रिपरेटरी स्टेज कहेंगे, और उम्र की बात करें तो 8 से 11 साल। मिडिल स्टेज की बात करते हैं तो ग्रेड उनका आ जाता है 6 to 8, और एज आ जाता है उनका 11 to 14। सेकेंडरी स्टेज की बात करते हैं तो ग्रेड 9 to 12 हो जाता है, और एज 14 to 18। इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, या आपको याद होगा भी। व्हाट इज ECCE? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फॉर्मलाइजिंग एजुकेशन फॉर एजेस 3 to 8। बाल वाटिका जैसे बीएड आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आता है, वैसी बाल वाटिका के लिए 2 वर्षीय ECCE पाठ्यक्रम आवश्यक है। जो बाल वाटिका टीचर्स हैं
उनसे आप पूछिए, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है? इट इज द ओवरआर्चिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क। NCF स्कूल एजुकेशन, secondary education, national curriculum framework for school education 2023. It's a guideline for 3 to 18 years children. Now NCF FS क्या है? FS फाउंडेशनल स्टेज है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2020, स्पेशल फोकस ऑन एज 3 to 8। दोस्तों ये सब चीजों को एक साथ एक मंच पर एक PDF में इसलिए लाया गया है ताकि आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता ना हो, सब कुछ आपको यहीं पर प्राप्त हो जाए। नाउ निपुण भारत, फुल फॉर्म आप जानते ही है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये इन, विथ एंड और ये फॉर, इनका प्रयोग सही तरीके से, संतुलित तरीके से कीजिएगा, क्योंकि वो तो बैठे ही हैं कि आप गलत बताएं। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप रट के आए हैं याद, इसको समझिए आप। व्हाट इज दैट? नेशनल इनिशिएटिव काहे के लिए? फॉर प्रोफिशिएंसी, काहे में? इन रीडिंग, किसके साथ? विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इट इज एक्चुअली द गोल टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। परख की हम बात करते हैं। व्हाट इज परख? फुल फॉर्म देख लीजिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। न्यू नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर, ये नया असेसमेंट रेगुलेटर है। समग्र शिक्षा क्या है? एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन। NATS नेशनल असेसमेंट टेक्निकल स्टैंडर्ड सेट बाय परख। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या है? रिमूविंग हार्ड separations between art, science and commerce. 3L, 3 लैंग्वेज रूल क्या है? 2 नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस among 3 लैंग्वेजेस, उसमें 2 नेटिव लैंग्वेज होना चाहिए। पहला मदर टंग, L1 मदर टंग। मदर टंग रीजनल लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, MOI, मीडियम ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE होता है। MOI क्या है? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। फोकस ऑन R1, that is language. Equivalence of school boards, standardizing assessment across board. Now semester system secondary में क्या है? Proposed for grade 9 to 12, yet it is to be implemented. Vocational education grade 6 onwards, exposure from school. दोस्तों पेडागोजी एंड लर्निंग अप्रोचेस की हम बात करते हैं NCERT में विशेष रूप से। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या है? पढ़ लीजिए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, दैट इज अनुभवात्मक अधिगम, लर्निंग बाय डूइंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। तो एक एक वर्ड का है, की वर्ड है, इन की वर्ड्स को आप बिल्कुल याद कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है? AIL, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, यूजिंग आर्ट टू टीच अदर सब्जेक्ट। स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी क्या है? तो यूजिंग स्टोरीज फॉर फाउंडेशनल लर्निंग। प्ले वे मेथड क्या है? तो हम बोलते थे खेल खेल में बच्चा सीखता है, इतना ही नहीं बोला, प्ले बेस्ड लर्निंग रिसोर्सेज फॉर फाउंडेशनल स्टेज। इट्स ए लर्निंग रिसोर्स फॉर फाउंडेशनल स्टेज। इंक्वायरी ड्रिवन अप्रोच क्या है? फॉस्टरिंग क्यूरियोसिटी, टू डेवलप द क्यूरियोसिटी अमंग द चिल्ड्रन इज इंक्वायरी ड्रिवन अप्रोच। अच्छा, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग क्या है? तो इनकरेजिंग स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन। तो ये छोटा सा कीवर्ड आपको बता दिया आपने, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ इनको आता है। और डिटेल में बताना हुआ तो आप डिटेल में बताइए, इसको पढ़ लीजिए। डिस्कशन बेस्ड लर्निंग क्या है? देखिए सारी लर्निंग है। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, प्ले वे मेथड, जदवी पिटारा, प्ले बेस्ड लर्निंग रिसोर्सेज फॉर फाउंडेशनल स्टेज है। इंक्वायरी ड्रिवन, ये सब लर्निंग का ही हिस्सा है, लेकिन आपको इसमें क्या होता है उसमें क्या होता है ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इन सभी को एक जगह पे लाया गया है आपके लिए ना। डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग हो गया। डिस्कशन बेस्ड लर्निंग क्या है? कोलैबोरेटिव लर्निंग इज नोन एज डिस्कशन बेस्ड लर्निंग। केस स्टडी मेथड क्या है? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एनालिसिस इज नोन एज केस स्टडी मेथड। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है? प्रैक्टिकल स्किल बिल्डिंग इज नोन एज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इन सबको यदि मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो हो सकता है यह वीडियो बहुत लंबा हो जाए। मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, उतना ही समय लेना चाहता हूं जितना रियल टाइम इज रिक्वायर्ड।
Now, digital pedagogies using technology for teaching. Now, bridge course. What is bridge course? To help student transition between stages from 5th to 6th, 8th to 9th, then 10th to 11th. These are the bridge courses, transitional period. Now, activity based learning क्या है? Using hands on activity to teach concept. Collaborative learning क्या है? Working in group is known as collaborative learning. Game based learning क्या है? Using games to strengthen numeracy and literacy. Now, interdisciplinary studies क्या है? तो दोस्तों आपको सिंपल सा बोलना, इंटीग्रेटिंग मल्टीपल डिसिप्लिन्स फॉर अ टॉपिक इज नोन एज इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज. इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या है? ब्रेकिंग डाउन सब्जेक्ट is known as integrated curriculum. Now, critical thinking, focus on how to think, not what to think. Critical thinking है क्या? What to think is not critical thinking. How to think. बच्चे को ये पता होना चाहिए कि सोचना कैसे है, फिर वो क्या सोचना है वो खुद ही फाइंड आउट कर लेगा. Now, creative thinking, fostering innovation. Let the child be innovative himself. Let the innovative practice foster in a child is creative thinking. Problem solving, applying knowledge to new situations is that. Now, curriculum components and contents area. NCF और SC की हम बात करते हैं तो इस प्रकार की चीजें आपको आएगी. इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS पूछा जाता है आपसे. व्हाट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम? इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज इन सब्जेक्ट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम. कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? CT. थिंकिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम विथ कंप्यूटर. नाउ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम चर्चा कर चुके हैं. वोकेशनल क्राफ्ट हम चर्चा कर चुके हैं. एथिकल रिसोर्सिंग, डेवलपिंग साउंड एथिकल मूविंग्स. नाउ, डिजिटल लिटरेसी, बेसिक IT skill is known as digital literacy. Now, environmental education, sustainability and conservation. Knowing about sustainability and conservation is environmental education. फिजिकल एजुकेशन एंड वेल, ये सब केवी के टर्म्स हैं दोस्तों. ये टर्म्स मैंने कहीं से उठा के नहीं लाए. ऑथेंटिक केवी कीवर्ड्स. ये सारी योजनाएं संगठन हमारा चला रहा है, समय समय पर प्रतिपादित किए गए हैं और इसे हम अपने अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट भी करते हैं. आर्ट ग्लोबल सिटीजनशिप, अगर कुछ छूट जाता है आप उसे पढ़ लेंगे. फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग इंटीग्रेटेड इनटू डेली स्कूल लाइफ. आर्ट एजुकेशन की हम बात करते हैं. विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट एंड हेरिटेज क्राफ्ट. वोकेशनल एक्सपोजर क्या है? तो ब्रीफ मॉड्यूल इन मिडिल स्कूल इज वोकेशनल एक्सपोजर 6 to 8 के बच्चों के लिए. कौशल बोध एक्टिविटी बुक फॉर वोकेशनल प्रोजेक्ट. अब बताओ वोकेशनल प्रोजेक्ट के एक्टिविटी बुक का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? कौशल बोध. ये दोस्तों पढ़ने से ही आएगा, हवा में बात करने से बिल्कुल नहीं आएगा. वर्क विथ लाइव फोरम, लर्निंग थ्रू बायोलॉजी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट. वर्क विथ मटेरियल एंड मशीन्स, प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग. एंड देन ह्यूमन सर्विसेज, कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम. इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे टर्म्स हैं. असेसमेंट और इवोल्यूशन, परख NCERT से ये सारे टर्म्स हैं. होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC बिल्कुल 360 डिग्री है. ये पूछा जाएगा पूछा जाएगा पूछा जाएगा. आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए. अ 360 डिग्री असेसमेंट रिपोर्ट इज होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC जो हमने शुरू किया है. कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट क्या है? इवैल्यूएटिंग मास्टरी ऑफ कॉम्पिटेंसी की कॉम्पिटेंसी में बच्चे की कितनी मास्टरी. फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? सबमिटिव असेसमेंट क्या है? सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, लर्निंग आउटकम LOs TLOs, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. लर्निंग स्टैंडर्ड क्या है? NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नास जिसे आप कहते हैं, रिप्लेस्ड बाय परख सर्वे. पहले ये हुआ करता था NAS और अब उसको परख ने रिप्लेस कर दिया है. परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, पोर्टफोलियो असेसमेंट, स्किल रूब्रिक्स, बोर्ड एग्जाम ट्वाइस अ ईयर. अभी ये प्रिवेलिंग है. टू रिड्यूस प्रेशर, अलाउिंग बेस्ट स्कोर रिटेंशन, इसी साल से प्रयोग किया गया है CBSE के द्वारा. तो ये सारी चीजों को आप पढ़िए दोस्तों, मास्टर कीजिए,
एंड देन हम आते हैं टीचर डेवलपमेंट एंड डिजिटल इनिशिएटिव। ये क्या है? निष्ठा टीचर्स के लिए, दीक्षा टीचर्स के लिए, पीएम ई विद्या टीचर्स के लिए, स्वयं MOOCs दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये टीचर्स के लिए स्वयं पोर्टल के द्वारा। पीएम ई विद्या क्या है? यूनिफाइड डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। ये सब एमसीक्यूज में दिए गए हैं दोस्तों, वीडियोज में विशेष करके इनको पढ़ाया गया है। यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड करने आया हूँ कि इन सब की तैयारी आपको इंटरव्यू के लिए भी करना है। ये आई वांट टू रिमाइंड यू। निष्ठा फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है निष्ठा। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल पोर्टल्स फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट। मनोदर्पण क्या है? मनोदर्पण का नंबर भी है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट एंड टीचर। सहयोग क्या है? मेंटल हेल्थ सेशन है। ये सारे स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या है? शेयर्ड रिसोर्स बिटवीन स्कूल्स। ये सब आपको पढ़ना है दोस्तों। ये सारी चीजें इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। यूनिक एनसीएफ फिलोसॉफिकल कंसेप्ट की हम बात करते हैं। R1 R2 R3 क्या है? पंचकोश क्या है? पंचकोश विकास, द इंडियन कंसेप्ट ऑफ होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट। फिजिकल that is शारीरिक, लाइफ एनर्जी that is प्राणिक, इमोशनल that is मानसिक, एंड इंटेलेक्चुअल that is बौद्धिक, एंड स्पिरिचुअल that is चैतिक डेवलपमेंट। ये सारे डेवलपमेंट इट इज नोन एज पंचकोश विकास। सब जानते हैं दोस्तों आप, फिर भी उनको अलग अलग हेडिंग बना के यहाँ पहले असेसमेंट के रूप में, फिर टीचर के रूप में, फिर बच्चों के रूप में, और अब यूनिक एनसीएफ फिलोसॉफिकल कंसेप्ट क्या क्या है, अलग अलग हेडिंग बना के आपके लिए हम लाए हैं दोस्तों। जादवी पिटारा, कौशल बोध, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी, पूर्वी ये नई किताब है, द न्यू क्लास 3 इंग्लिश टेक्स्ट बुक। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। इंडियाज एजुकेशन strategy is primarily guided by the National Education Policy (NEP) 2020, which aims for 100% literacy and cross enrollment by 2030. The government implement this thoroughly through a variety of targeted schemes focusing on school infrastructure, digital learning, scholarship and skill development. इनकी भी हम नीचे चर्चा करेंगे कौन कौन सी चीजें और रह गई। स्कूल एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, समग्र शिक्षा, पीएम श्री स्कूल्स, निपुण भारत, पीएम पोषण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय स्कीम, जवाहर नवोदय विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, विद्यांजलि 2.0, प्रेरणा प्रोग्राम, इन सबको पढ़िए दोस्तों। स्कॉलरशिप की बात करें तो आपको 10 स्कॉलरशिप के बारे में भी पता होना चाहिए। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMSS, 12,000 रुपये एनुअली फॉर मेरिटोरियस EWS स्टूडेंट, ये इन बच्चों को भी नहीं पता होगा। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, कलेक्ट्रेट कोलाटेरल फी एजुकेशन लोन फॉर टॉप इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए इस तरीके की स्कॉलरशिप मौजूद है। इंस्पायर स्कॉलरशिप, पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप जो हम देते हैं, प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज। डिजिटल हायर एजुकेशन की हम बात करें, इसकी हम बात कर चुके हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ, हालांकि इतना डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन यू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। अपार ID क्या है? PM उषा क्या है? इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस क्या है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है? और स्वयं प्रभा क्या है? व्हाट इज स्वयं प्रभा? DTH चैनल फॉर ब्रॉडकास्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम 24/7, दैट इज स्वयं प्रभा। तो दोस्तों इस प्रकार की सारी चीजें आपके लिए लेकर आए हैं। स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, लास्ट 2 पेजेस फ्रेंड्स, इन सबको भी पढ़िए, रटिए मत, कम से कम एक बार पढ़िए तो आपको पता रहेगा। स्पेशलाइज्ड एंड इंक्लूसिव इनिशिएटिव्स क्या क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM जनमन, उल्लास, देन प्रशस्त ऐप। प्रशस्त ऐप क्या है? हमने आपसे पूछा था, अ टूल टू स्क्रीन स्टूडेंट फॉर डिसेबिलिटीज, दैट इज प्रशस्त ऐप। जेंडर इंक्लूसिव फंड, और फिर रिसर्च एंड इनोवेटिव प्लान्स की हम बात करते हैं, तो ये सारे वो प्लान है। PMRF, SPARC, स्टार्स, स्ट्राइट, इम्प्रेस,
ये सारे वर्ड्स आपको पढ़ने चाहिए दोस्तों। अब आपके लिए अंतिम पेज, बहुत ही ध्यान से देखिए दोस्तों। आप इस वीडियो पे बने हुए हैं तो निश्चित रूप से इसीलिए बने हुए हैं बिकॉज यू फील एवरीथिंग इज डन हियर, एवरीथिंग इज गिवन हियर। हायर एजुकेशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, GIAN टैप्स टैलेंट फॉर इंटरनेशनल फैकल्टी टू टीच इन इंडिया। Studies in India, that is SII, studies in India, attracting international students to India. Professor to professor of practice, allowing industry expert to teach in universities. Teachers and institutional support. This one, Malviya Mission capacity building for faculty in higher education. LEAP, leadership training for senior faculty. NEAT uses AI to personalize learning via edutech productions. And lastly, diet of excellence, upgrading district institution of education and training. स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट वेलफेयर की, तो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, converting classroom into digital learning spaces. And Jadvi Pitara, that is digital version of play-based learning box. So friends, that's all in today's video. I hope this complete PDF will help you out to prepare your interview very well. Whether you are appearing for any interview of Kendriya Vidyalaya, whether vice principal or for assistant commissioner, these are going to help you a lot. Thank you for watching it. Do subscribe the channel, share it with your friends, and definitely friends, if you have watched it for an hour, I expect a feedback from you, a comment in the comment section. How did you like the video? बने रहिए दोस्तों, मॉक इंटरव्यू अटेंड कीजिए, and all the best for your future. Thank you. Have a nice day. See you in the next video. Till then, good day.